So today we are going to study about the larynx. Larynx, the larynx is also called as a voice box. ठीक है, larynx को हम क्या कहते हैं? Larynx is also called as a voice box. The larynx is a short passageway that connects laryngopharynx with the trachea. ठीक है, larynx क्या करता है? Larynx एक छोटा सा passage है. ठीक है, it is a small passageway. Larynx is a small passageway जो क्या करता है, लैरिंजोफैरिंग्स को किससे कनेक्ट करता है? ट्रैकिया से कनेक्ट करता है. ठीक है, दिस इज़ व्हाट लैरिंजोफैरिंग्स. लैरिंजोफैरिंग्स को ये किससे कनेक्ट करता है? ट्रैकिया से कनेक्ट करता है. इट इज़ ए स्मॉल पैसेजवे. देन इट लाइज इन द मिड लाइन ऑफ नेक एंटीरियर to the esophagus and at the level of 4 to 6 cervical vertebra. See, it lies इन द मिड लाइन ऑफ द नेक. इट लाइज मतलब ये बीचों बीच होता है. ओके, इट लाइज इन द मिड लाइन ऑफ द नेक एंटीरियर टू ईसोफेगस मीन्स ईसोफेगस के फ्रंट में. ठीक है, एंटीरियर टू द ईसोफेगस एंड एट द लेवल ऑफ 4th to 6th cervical vertebra. 1 2 3 4 4 to 6 cervical vertebra. Okay, it lies in the midline of the neck. It lies in the midline of the neck and anterior to the esophagus, anterior to the esophagus and at the level of 4 to 6 cervical vertebra. Then the wall of larynx is composed of 9 pieces of cartilage. Larynx जो है 9 टाइप के कार्टिलेज से मिलकर के बना हुआ है. फर्स्ट वन इज द थायरॉइड कार्टिलेज. दिस इज द थायरॉइड कार्टिलेज. देन वन epiglottis, one thyroid cartilage, one epiglottis, one cricoid cartilage. This is the cricoid cartilage. One cricoid cartilage. Then two arytenoid cartilage. This is one arytenoid. This is two arytenoid. Okay, two arytenoid cartilage. Then two cuneiform cartilage, two cuneiform cartilage, and two corniculate cartilage. This is the corniculate cartilage. Two cuneiform cartilage and two corniculate cartilage. Okay, see, this is the cuneiform cartilage. जब हम lateral view देखते हैं इसका तो हमको cuneiform cartilage दिखाई देता है. Okay, two cuneiform cartilage, two corniculate cartilage and two arytenoid cartilage. Okay, so total 9 pieces of cartilage से larynx form हुआ है. देन ये जो आर्टिनॉइड कार्टिलेज रहता है, दिस आर्टिनॉइड कार्टिलेज हेल्प इन द स्पीच. ये जो आर्टिनॉइड कार्टिलेज है ये स्पीच में हेल्प करता है क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है? वोकल कॉर्ड से ये क्या है? कनेक्टेड रहता है. तो ये जो है किस में हेल्प करता है? स्पीच में हेल्प करता है. ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द थायरॉइड कार्टिलेज. व्हाट इज़ द थायरॉइड कार्टिलेज? दिस इज़ द थायरॉइड कार्टिलेज. ये इसका एंटीरियर व्यू है, मतलब ये सामने से दिखता है. दिस इज़ द एंटीरियर व्यू एंड ये इसका पोस्टीरियर व्यू है. सी, ये वाला जो हिस्सा है ये पोस्टीरियर व्यू है थायरॉइड कार्टिलेज. ओके, देन थायरॉइड कार्टिलेज एनाटॉमी. इट कंसिस्ट ऑफ टू फ्यूज्ड plates of hyaline cartilage that forms the interior wall of the larynx. Okay, ये एक प्लेट है, ये दो प्लेट है. It is made up of two plates of fused hyaline cartilage. One plate of hyaline cartilage, two plate of hyaline cartilage. ये यहाँ से क्या है? जुड़े हुए हैं. ठीक है, and it forms the anterior wall of the larynx. ये क्या करता है? फ्रंट वॉल बनाता है किसका? larynx का. It forms the anterior wall of the larynx and it is made up of two fused plate of hyaline cartilage. Okay, thyroid cartilage is also called as a Adam's apple. thyroid cartilage को हम क्या कहते हैं? Adam's apple भी कहते हैं. Then it is usually larger in male due to influence of male sex hormone on its growth during puberty. Okay, at the time of puberty, जब males में puberty आती है तो क्या होता है? male sex hormones लाइक एंड्रोजन ये क्या करते हैं? इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं. ठीक है, इसीलिए ये जो थायरॉइड कार्टिलेज है जिसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं, ये मेल्स में क्या रहता है? इनका साइज़ बड़ा रहता है और ये फील भी हो सकता है. ठीक है, जब हम नेक टच करते हैं मेल्स का तो हमको थायरॉइड कार्टिलेज मतलब ये जो एडम्स एप्पल है क्या होता है? फील होता है. तो ये जो थायरॉइड कार्टिलेज है ये मेल्स में जनरली लार्जर रहता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स. Then the ligament that connect the thyroid cartilage to hyoid bone is called as a
हायोइड मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज द हायोइड बोन, ओके। थायराइड कार्टिलेज को हायोइड बोन से जो मेम्ब्रेन कनेक्ट करती है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज वॉज थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, ओके। थायराइड कार्टिलेज को हायोइड बोन से जो मेम्ब्रेन कनेक्ट करती है, इट इज कॉल्ड एज अ थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, ओके। पोस्टीरियर व्यू में भी आप देख सकते हैं, दिस इज द थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, दिस इज द thyroid cartilage, this is the hyoid bone, okay. So this was about the thyroid cartilage. Next, epiglottis. Now what is epiglottis? The epiglottis is a large leaf shaped structure. epiglottis फ्रंट व्यू से इतना ही दिखाई देता है, लेकिन जब हम पीछे से देखते हैं larynx को, this is epiglottis. Epiglottis is a large leaf shaped structure, okay. Then it is made up of elastic cartilage. It is made up of elastic cartilage and it is covered with epithelium, okay. It is a leaf like structure, it is a large leaf like structure, it is made up of elastic cartilage and it is covered with epithelium. ये epithelium से covered रहता है. इसके दो पार्ट रहते हैं, स्टेम रहता है और लीफ रहता है, ओके। तो ये जो स्टेम वाला हिस्सा रहता है, ये किससे अटैच्ड है? इट इज़ अटैच्ड विद द थायराइड कार्टिलेज, ओके, इट इज़ अटैच इन द थायराइड कार्टिलेज. स्टेम वाला हिस्सा जो है वो कहाँ अटैच्ड है? इन द एंटीरियर रिम ऑफ थायराइड कार्टिलेज, ओके. एंड जो लीफ वाला पार्ट रहता है, ये अटैच नहीं रहता, ओके, ये फ्री रहता है, इट इज़ फ्री टू मूव. ये अप डाउन क्या होता है? मूव हो सकता है, ओके. सो इट हैज़ टू पार्ट, लीफ एंड स्टेम. स्टेम थायराइड कार्टिलेज से अटैच्ड है और जो लीफ है वो क्या रहता है? इमूवेबल रहता है, मूवेबल रहता है, सॉरी, मूवेबल रहता है. इट कैन मूव अप एंड डाउन, ओके. स्वैलोइंग के टाइम पे ये जो एपिग्लॉटिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एट द टाइम ऑफ स्वैलोइंग, ओके. क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ स्वैलो करते हैं तो क्या होता है? हमारा फैरिंग्स, ठीक है, वो ऊपर की तरफ आता है और जो लैरिंग्स है, इट इज़ ऑल्सो गॉट एलिवेटेड. द फैरिंग्स एंड लैरिंग्स गॉट एलिवेटेड. फैरिंग्स जब एलिवेट होता है तो फूड और जो भी हम खाते हैं, जो बोलस हम लेते हैं बाय माउथ, जाने के लिए क्या रहता है? एक अच्छा वाइडर स्पेस मिलता है. और जब लैरिंग्स एलिवेट होता है, एट दैट टाइम क्या होता है? ये जो एपिग्लॉटिस रहता है, ये नीचे की तरफ क्या हो जाता है? मूव हो जाता है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ओके. दिस इज व्हाट? लैरिंग्स. दिस इज द एपिग्लॉटिस, ओके. तो जब भी हम कोई फूड इनगल्फ करते हैं, निगलते हैं, तो क्या होता है? दिस एपिग्लॉटिस क्या होता है? ये नीचे की तरफ मूव हो जाता है और ये क्या करता है? लैरिंग्स को क्या करता है? क्लोज करता है, ओके. जिससे जो भी फूड है वो विंड पाइप में नहीं जाता और डायरेक्टली क्या होता है? ईसोफेगस में फूड जो है वो चला जाता है. तो एट द टाइम ऑफ swallowing, this epiglottis play a very important role, okay. It moves down, so the lid of the glottis get closed and this make the food content to move directly into the esophagus and the food content or the drinks does not enters in the wind pipe. ये सबसे मेन काम रहता है epiglottis का, okay. Now the glottis consist of pair of folds of mucous membrane, जिसको हम क्या कहते हैं? वोकल फोल्ड्स भी कहते हैं, ओके. ये जो ग्लॉटिस मैं बोल रही हूँ, है ना, ये दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लॉटिस, है ना. तो ये जो पोर्शन रहता है, दिस इज द एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस क्या होता है? इस रीजन को क्या कर देता है? क्लोज कर देता है. ग्लॉटिस को क्या करता है? क्लोज करता है. ये है ट्रैकिया की विंड पाइप है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो फूड रहता है वो विंड पाइप में नहीं जाता है. एपिग्लॉटिस इसको क्या कर देता है? क्लोज कर देता है, ठीक है. तो ये जो ग्लॉटिस जो है, दिस इज ग्लॉटिस, है ना. तो ग्लॉटिस कंसिस्ट ऑफ वोकल कॉर्ड्स. इनमें क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स रहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ट्रू वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है. और इनके बीच की जो स्पेस रहती है, इट इज़ कॉल्ड एज अ रीमा ग्लॉटिडिस, रीमा ग्लॉटिडिस, ओके. नाउ the closing of larynx in this way during swallowing root liquid and food into the esophagus and keep them out of the larynx and airway, okay. तो जैसे मैंने अभी बताया कि जब ये एपिग्लॉटिस क्लोज होता है तो क्या होता है? इस डायग्राम में आप देख सकते हैं,
जब एपिग्लॉटिस क्लोज होता है तो क्या होता है, जो भी फूड कंटेंट है वो डायरेक्टली इसोफेगस में जाता है और वो इस विंड पाइप में नहीं एंटर करता। ओके और अगर बाय चांस अगर कोई स्मॉल डस्ट पार्टिकल या फिर अगर कोई फूड कंटेंट कोई भी अगर इस पार्ट में चला गया, ओके तो क्या होता है, कफिंग रिफ्लेक्स होता है और उस कफिंग रिफ्लेक्स की वजह से क्या होता है, जो भी फूड कंटेंट अंदर गया है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। सो दिस वाज अबाउट द एपिग्लॉटिस। ओके नाउ थर्ड वन इज द arytenoid cartilage. Arytenoid cartilage, the paired arytenoid cartilage are triangular pieces of mostly hyaline cartilage. Okay, this is the arytenoid cartilage. इसका शेप कैसा है, ट्राइंगुलर शेप का रहता है। ओके ये भी क्या रहता है, पेयर में प्रेजेंट रहता है। द arytenoid cartilage are paired cartilage, triangular in shape and it is also made up of hyaline cartilage. Now where it is located? It is located at posterior, पीछे की तरफ, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। सी दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर, मतलब ऊपर का बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो ये जो आर्टिनोइड कार्टिलेज है ये कहाँ पे लोकेटेड है, एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ, दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज। ओके और ये पोस्टीरियर साइड में रहता है, ऐसे फ्रंट में आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक, ओके आर्टिनोइड कार्टिलेज है ना। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, they are attached to the vocal folds and intrinsic pharyngeal muscles. This structure when contract help to produce sound. Okay तो ये जो आर्टिनोइड कार्टिलेज है ये किससे कनेक्टेड रहता है, इट इज कनेक्टेड विद द वोकल फोल्ड्स। ओके एंड दिस कार्टिलेज हेल्प्स इन द स्पीच, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। देन नेक्स्ट वन इज द क्रीकॉइड कार्टिलेज। सी दिस इज द क्रीकॉइड कार्टिलेज। ओके दिस इज द क्रीकॉइड कार्टिलेज. The cricoid cartilage is a ring of hyaline cartilage that forms inferior wall of the larynx. This is cricoid cartilage. It is having a ring-like structure. Like जैसे artenoid triangular shape का है, it is a ring-like structure. It is also made up of hyaline cartilage and it forms the inferior wall of the larynx. Okay, larynx का निचला हिस्सा बनाता है ये, ठीक है, inferior wall of larynx. Then it is attached to the first ring of trachea. This is the first ring of trachea. It is attached to the first ring of trachea by cricotracheal ligament. See, this is the cricotracheal ligament. ओके तो ये जो क्रीकॉइड कार्टिलेज है ये फर्स्ट रिंग ऑफ ट्रैकिया से किसके थ्रू जुड़ा है, बाय क्रीकोट्रैकियल लिगामेंट। दिस इज द क्रीकोट्रैकियल लिगामेंट। फर्स्ट रिंग ऑफ ट्रैकिया से जो क्रीकॉइड कार्टिलेज है ये किसके थ्रू जुड़ा है, बाय क्रीकोट्रैकियल लिगामेंट। ओके देन नेक्स्ट पॉइंट, द क्रीकॉइड कार्टिलेज इज कनेक्टेड टू थायराइड कार्टिलेज बाय क्रीकोथायराइड लिगामेंट। अब ये जो क्रीकॉइड कार्टिलेज है इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू थायराइड कार्टिलेज, है ना, ये थायराइड कार्टिलेज से भी कनेक्टेड है, पर कैसे कनेक्टेड है, बाय क्रीकोथायराइड लिगामेंट। सी क्रीकोथायराइड लिगामेंट। ओके क्रीकॉइड कार्टिलेज इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द थायराइड कार्टिलेज, कैसे, बाय क्रीकोथायराइड लिगामेंट। तो यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज, यहाँ पे क्रीकॉइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज और क्रीकॉइड कैसे जुड़ा है, बाय क्रीकोथायराइड लिगामेंट। और जो आपका ट्रैकिया, फर्स्ट रिंग ऑफ ट्रैकिया और जो क्रीकॉइड कार्टिलेज है वो कैसे जुड़ा हुआ है, कौन सी लिगामेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ए क्रीकोट्रैकियल ligament. This is the cricotracheal ligament, this is the cricothyroid ligament. Okay, so this was about the cricoid cartilage. Next is the corniculate cartilage. Okay, इस डायग्राम में आपको corniculate cartilage दिखाई देगा. This is the corniculate cartilage. Okay, the corniculate cartilage ये भी paired रहता है. It is of horn shape, ये horn shape का रहता है. It is made up of elastic cartilage. Okay, and where it is located? It is located at the apex of each arytenoid cartilage. ठीक है, आर्टिनोइड कार्टिलेज के एपेक्स वाला जो रीजन रहता है वहाँ पे क्या है, ये लोकेटेड रहता है. इट इज़ लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ ईच आर्टिनोइड कार्टिलेज. दिस वाज अबाउट द कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज. ओके, नेक्स्ट इज द पेयर्ड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, है ना, ये भी पेयर्ड रहता है. इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड एंटीरियर टू द
कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, सामने, ठीक है, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज के ठीक सामने ये क्या है, लोकेटेड है। दे सपोर्ट द वोकल फोल्ड्स एंड लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ द एपिग्लॉटिस। देखो ये वोकल फोल्ड्स को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, कौन, आर्टिनोइड कार्टिलेज, यहीं से क्या है, वोकल फोल्ड्स क्या है, अटैच्ड है ना, तो ये क्या करता है, वोकल फोल्ड्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ओके। एंड एपिग्लॉटिस को भी, देखो ये एपिग्लॉटिस है और ये वोकल फोल्ड्स है, ये क्या करता है, इसको सपोर्ट करता है, आर्टिनोइड कार्टिलेज, कॉर्निक्यूलेट एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ओके। ये जो हमारा लैरिंग्स रहता है ये 3 वे में फंक्शन करता है। अगर लैरिंग्स कम्प्लीटली ओपन है ना, अगर लैरिंग्स कम्प्लीटली ओपन है तो ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तब लैरिंग्स क्या है, कम्प्लीटली ओपन रहता है। अगर ये पार्शियली ओपन है, ठीक है, तो ये किस में हेल्प करता है, स्पीच में हेल्प करता है, ठीक। और अगर ये कम्प्लीटली क्लोज है, एट दैट टाइम क्या होता है, हम कोई भी चीज़ स्वेलो कर सकते हैं, वाटर जब हम पानी पीते हैं या जब हम फूड खाते हैं तो ये क्या रहता है, कम्प्लीटली क्लोज रहता है, और ये क्या करता है, स्वेलोइंग में हेल्प करता है। तो लैरिंग्स 3 वे में फंक्शन करता है। इफ़ इट इज़ कम्प्लीटली क्लोज्ड ये स्वेलोइंग में हेल्प करेगा, इफ़ इट इज़ कम्प्लीटली ओपन देन ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, और अगर ये पार्शली ओपन है तो ये किस में हेल्प करेगा, स्पीच में हेल्प करेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लैरिंग्स।